گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ گورنر سندھ نے فائنانس بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ فائنانس بل 2024-2025 پر گورنر سندھ کی جانب سے دستخط وہ کر دیے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کے دستخط سے بجٹ کی منظوری کا عمل وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے سندھ کے فائنانس بل پر گورنر سندھ کو دستخط کرنا وہ لازمی ہوتے ہیں۔ تاہم آج گورنر سندھ کی جانب سے اسمبلی پر باقاعدہ طور پر دستخط وہ کر دیے گئے ہیں۔ چند روز قبل سندھ اسمبلی نے فائنانس بل 2024 سے 2025 تک کی دستخط رائے سے منظوری دی تھی۔ اس ضمن میں گورنر سندھ کو باقاعدہ طور پر سمری بھیجی گئی تھی، جس پر آج کامران خان ٹیسوری نے دستخط کیے ہیں۔ اس دستخط کے بعد باقاعدہ طور پر آئندہ مالی سال کا بجٹ وہ اس کی منظوری وہ دی جا چکی ہے۔ جی شعیب مختار، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بندرگاہوں پر LNG نیویگیشن کے لیے ترکی میں ٹگ شپ تیار کر لیا گیا ہے۔ LNG نیویگیشن ٹگ شپ دن کے علاوہ رات کو بھی چینل میں آنے اور جانے LNG جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی ہاں، اپڈیٹ ملی کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے لیے تعمیر ہونے والے LNG نیویگیشن ٹگ شپ کی ترکی میں لانچنگ کی تقریب ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بندرگاہوں پر LNG نیویگیشن کے لیے ترکی میں ٹگ شپ تیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی شپنگ کی تاریخ میں پہلی بار LNG کی ہینڈلنگ کے لیے نیویگیشن ٹگ شپ پورٹ قاسم نے تیار کروایا ہے۔ اور یہاں LNG نیویگیشن ٹگ شپ دن کے علاوہ رات کو بھی چینل میں آنے اور جانے کے لیے LNG جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ LNG نیویگیشن ٹگ شپ کی لانچنگ کی تقریب ترکی کے شپ یارڈ میں منعقد ہوئی ہے اور یہاں نیویگیشن ٹگ شپ کے ٹرائلز کے بعد بیڑے میں جدید LNG ٹگ شپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ جی اشرف خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے۔ PIA نے عمرہ کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان PIA کے مطابق پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے عمرہ زائرین رعایتی کرایوں سے مستفید ہوں گے۔ کراچی سے مدینہ منورہ عمرہ کا 2 طرفہ کرایہ 76,000 علاوہ ٹیکس ہوگا۔ بات کرنے کے لیے موجود ہے اشرف خان۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے PIA کا عمرہ کرایوں میں کمی کا اعلان ہوا ہے۔ بڑا اعلان کیا گیا کہ پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے عمرہ زائرین رعایتی کرایے سے مستفید ہوں گے۔ کراچی سے مدینہ منورہ عمرہ کا 2 طرفہ کرایہ 76,000 علاوہ ٹیکس ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے مدینہ منورہ کا 2 طرفہ کرایہ 86,000 علاوہ ٹیکس مقرر کیا گیا ہے۔ رعایتی کرایوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ رعایتی کرایوں پر پاکستان سے سفر کی سہولت 15 جولائی تک مؤثر رہے گی۔ جی اشرف خان، بہت شکریہ۔ ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ کے قریب ٹریفک حادثہ، کوسٹر اور ٹرالر میں تصادم سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی۔ بس میں سوار افراد پکنک کے لیے ہاکس بے جا رہے تھے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے فرحان خان سے۔ فرحان، بتائیے گا۔ جی بالکل، ماڑی پور روڈ پہ پکنک بس کا وہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹرالی کی زد میں آ کے پکنک بس سوار تھی، جس کے اندر 40 سے 45 افراد سوار تھے، وہ اس واقعے کے اندر متعدد سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 7 افراد کی جاں بحق کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ 21 افراد کو ٹوٹل سول اسپتال لایا گیا تھا، جس میں سے اب تک 7 افراد کی جاں بحق کی اطلاع موصول ہوئی، جبکہ 14 افراد زیر علاج تھے، جن میں سے ابھی بھی مزید 5 ایسے افراد ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق متعدد سے زائد مریض کو جن کو معمولی چوٹیں تھیں ان کو طبی امداد فراہم کر کے گھر روانہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ہم نے یہاں پہ اہل خانہ سے بھی بات کری، ان کا یہ کہنا ہے، جو رشتہ دار تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم بھنگوریا گوٹ کے رہائشی ہیں، گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت کے باعث پکنک منانے کے لیے نکلے تھے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، ابھی تک ہم سے کسی نے کسی قسم کا کوئی تعاون یا کسی بھی قسم کی کوئی ہم سے اب تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ہیلتھ منسٹر وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور جو ٹرالی کی زد میں آ کے جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو فرار ٹرالر کا ڈرائیور ہے اس کو بھی پکڑنے کے احکامات۔ آپ کو بتائیں، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ میئر نے نالوں کی صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ KMC حکام کی جانب سے میئر کراچی کو نالوں کی صفائی سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کے وہ دورہ کیا ہے۔
मेयर कराची ने कोरंगी में नालों की सफाई के काम का जो है जायजा लिया है। मेयर कराची ने कोरंगी खड्डी स्टॉप 10,000 रोड पर नालों की सफाई के काम का जो है मुआयना किया है, जबकि उनकी जानिब से निहाल अस्पताल जिला कोरंगी काला बोर्ड पर नाले की सफाई के काम का भी जायजा लिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है ब्रीफिंग भी दी गई है। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि बारिशों से कबल जो है शहर के तमाम नालों की सफाई के अहकाम जारी किए हैं। हम छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे। नालों की चौकिंग की बड़ी वजह जो है पॉलीथीन बैग्स हैं। मेयर कराची को ये ब्रीफिंग में बताया गया है, जिस पर मेयर कराची का कहना था कि हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां जो है फंसी हुई हैं। बाज़ मकामात पर पत्थर नालों में पड़े हुए हैं। शहरी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल जो है तर्क कर दें। प्लास्टिक की थैलियां ना सिर्फ माहौल दुश्मन है बल्कि नालों के चौक होने का भी बाइस बनती हैं। जी शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के बरसाती नालों की सूरत हाल ताहाल गैर तसल्ली बख्श करार। 42 बड़े नाले KMC और 525 छोटे नाले टाउन हुकूमतों की जिम्मेदारी हैं। KMC ने बड़े नालों की सफाई का आगाज कर दिया। TMCs के नाले सारा साल सफाई के बावजूद दर्जनों मसाइल से दो चार हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, शहर भर के बरसाती नालों की अगर सूरत हाल देखी जाए तो तेज़ बरसात के मुतामिल अब भी दिखाई नहीं देते हैं। अगरचे KMC की जानिब से उसके जो 42 बड़े नाले हैं उनकी सफाई के काम का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन 525 से ज़ायद जो शहर भर के छोटे नाले हैं जो कि TMCs की जिम्मेदारी हैं, बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हाल है, हिफाजती पुश्तों से महरूम है, तजावज़ात उन पर कायम हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मोमिनाबाद टाउन की UC 3 और 4 के दरमियानी नाले से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है? सर बरसाती नालों की सूरत हाल तो आपके सामने है। काफ़ी अरसे से जो है ना इसकी सफाई नहीं हुई, और जो अभी आपने जिक्र किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो बिल्कुल नाकारा है। वो मेरे ख्याल से किसी काम की नहीं है। और इसके अलावा हमारे UCs और ये इनके अमले भी नहीं है। अच्छा, आपके जहन में कोई आइडिया है ऐसा कि इन नालों को सिक्योर किया जा सके और बरसात का पानी इसमें तेजी से बहाव उसका हो सके? क्या करना चाहिए? ये इसको तो पैक करना चाहिए, पूरा पैक करना चाहिए। और माजरत के साथ पहले भी इस नाले का जो बजट पास हुआ था वो करप्शन की नज़र हो चुका है, लेकिन ये जब तक पैक नहीं होगा तो इसके कोई भी ऐसा कोई मामला नज़र होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि लोग कचरा यहीं फेंक रहे। कचरा कुंडियाँ हैं ही नहीं। हमारी एक कचरा कुंडी बनी हुई है यहाँ से 4 नंबर मोमनाबाद थाने के पास, कौन जाएगा वहाँ फेंकने? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अलमिया है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँगा आपको कि दफ़ा 144 नाफिज है नालों में कचरा फेंकने के हवाले से, लेकिन इस हवाले से भी इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती। और आवाम का ये दुहाई है कि उनके लिए जो कचरा कुंडियाँ माजी में हुआ करती थी घरों के नज़दीक, वो ख़त्म कर दी गई हैं, तो वो कचरा फेंकने कहाँ जाएँ? लिहाजा नालों के ही कचरा कुंडी बनाया हुआ है। बरसात में शहर का वसी इलाका और ख़ास तौर पर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो डूबने का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। जी, मॉनसून बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए टाउन की सतह पर नालों की सफाई का आगाज। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी कहते हैं, नालों पर कब्जा जमाकर बैठे कचरा चुनने वाले नालों की चौकिंग का बाइस बनते हैं। शहर के नालों के अतराफ मौजूद कचरा चुनने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त फरहान गनी के साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। और जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून की मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए नालों की सफाई का अमल जो है जारी है। हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के नालों का जायजा लिया तो देखा कि बड़ी तादाद में जो है वो कचरा मौजूद है, प्लास्टिक की शॉपर्स जो है मौजूद हैं। शहरी जो है नालों में भी कचरा फेंकते हैं, उनके खिलाफ आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती? और कब तक बल्दिया उज़्मा कराची के जो है 70 से 80 करोड़ रुपए सालाना नालों की सफाई पर खर्च होते रहेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी। ये बताइएगा, नालों की सफाई के दौरान आप लोगों को भी मुश्किलात का सामना होता होगा, लोग कचरा डाल देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या आपने कोई राब्ता किया है इस मामले पर किसी आला हुकाम से, कमिश्नर कराची से? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये हकीकत है हमारे शहर की कि एक तो बहुत बड़ा शहर है और नाले की सराउंडिंग बहुत बड़ी आबादियाँ हैं। एक तो सबसे पहले हमें जो ये कचरा चुनने वाले हमारे नालों के अतराफ जिनको किराए पे घर हैं या उनके अपने घर हैं, ये जो बैठे हुए हैं, अगर इनको हम यहाँ से नहीं भगाएंगे तो ये हर साल नहीं, आपने गलत कहा कि हर साल, हर बारिश के सीज़न में, चाहे वो मानसून हो या सर्दियों की बारिशें हों, उसमें ये 70 से 80 करोड़ रुपये नाले सफाई की मद में हमारे ज़ाया होते रहेंगे।
हमें इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनके ऊपर FIR करनी चाहिए। हमें जो कचरा चुनने वाले नालों के तरफ बैठे हुए हैं, ये जो अपने दूसरा कचरा, ज़्यादा कचरा ये लोग फेंकते हैं। आवाम तो फेंकती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आवाम का 20% 25% होता होगा, 75% इनका कचरा होता है। आप विजिट करें जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, किसी भी नाले में चले जाएं, जहाँ पर ये बैठे हुए वहाँ पे आपको नाले कचरे से कचरों के ढेर नजर आएंगे। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम अगर इस पे सारे मिलकर एक्शन करें तो एक अच्छी कार्रवाई इस पे हो सकती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि नालों के इतराफ जो कचरा चुनने वाले होते हैं वो ज़्यादातर कचरा जो है नालों के अंदर डालते हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर्दी की बारिश हो या गर्मी की बारिश, बल्दिया उज़्मा कराची के नालों की सफाई पर जो है करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जाते हैं। ताहम इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची और तमाम टाउन्स को जो है मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि ये नाले जो है साफ़ रह सकें। इनकी जानिब से कई बार जो है आला हुकाम से भी राब्ता किया गया है और उन्हें बाकायदा तौर पर तमाम तर मामले से भी आगाह किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई सुनवाई जो है नहीं हुई है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध के वजीर तवानाई रात गए मुतहर्रिक। नासिर हुसैन शाह के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सूबाई वजीर को लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। अब लोड शेडिंग कम होगी, सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा किया और के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कई इलाकों में लोड शेडिंग कम हो चुकी है, आने वाले दिनों में लोड शेडिंग के दौरानिये में बतदरीज कमी देखी जाएगी। काफ़ी जगहों पे जो वैसे लोड शेडिंग होती थी वहाँ पे कमी आई है, और दीगर जगहों पे जहाँ पे आज भी लोड शेडिंग है 3 या 4 दिन के अंदर अंदर बतदरीज सब इलाकों से वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को आराम दे सकें, वो सुकून की नींद सो सकें, और फिर जो गर्मी का टाइम है उसमें भी लोड शेडिंग कम हो। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की सूबाई वजीर को लोड शेडिंग में कमी करने की यकीन दहानी करा दी। काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कराची में जारी गर्मी की लहर में कल से कमी मुतवक्का है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह के औकात से ही मौसम जो है वो खासा गर्म महसूस किया जा रहा है। इस वक्त मतलब मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है। सूरज की बराह रास्त किरणों ने जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जबकि जो दर्जे हरारत है वो इस वक्त भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो महसूस की जा रही है वो इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में जो है वो जुनूब मगरबी सिम से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएँ भी चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है वो 46% है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज जो है वो इसी तरीके से मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा और शाम के औकात में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। ताहम जो है वो कल से शहर कायद में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी कभी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो मौसम खासा गर्म है और मरतूब भी है। ताहम शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जबकि इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। जी। कराची अदालतों में केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई केस की समाअत। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली अदील खान की अदम पेशी पर जमानत मनसूख कर दी। लांडी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का मुकदमा। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में डकैती के मुकदमे की समाअत। 2 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची में अदालतों में केसेस की समाअत इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई केस की समाअत की। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली अदील खान की अदम पेशी पर जमानत मनसूख कर दी। इंसाद दहशतगर्दी अदालत में लांडी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और हंगामा राई का मुकदमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिम राजा अजहर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहों को 18 जुलाई को तलब कर लिया। ग्रेड 1 से 15 में 54,000 से जायद भर्तियां की गईं। अदालत ने एमक्यूएम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में इलेक्शन मुहिम में तसादम के दौरान एमक्यूएम कारकुन फराज के कत्ल का मुकदमा। अदालत ने पुलिस की मुकदमा दाखिल दफ्तर करने के लिए 1 लाख की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दोबारा तहकीकात करके 13 जुलाई को रिपोर्ट पेश की जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में डकैती के मुकदमे की समाअत। 2 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिम नूर मोहम्मद को गैर कानूनी असले पर मजीद 7 साल की सजा सुनाई गई।